Hello, welcome to all. Today we are going to learn about the second method of solving linear program problem, and that is simplex method. Graphical method have certain limitations that we cannot solve more than a problem having more than two decision variables. While in the simplex method you can solve any variety of problem having any magnitudes or any number of decisions variables. So this particular method, it is an basically it is an efficient method. It is an efficient method for solving linear program problem, solving linear program problem of any order. Any order means number of variables है, whether it is 3 variable, 4 variable or 5 variable. So in this, using this particular method, you can solve any kind of linear program problem having more than 2 decision variables, and this is a superior method. This is a superior method than graphical method. It is a superior method than ग्राफिकल मेथड्स. ग्राफिकल मेथड्स में लिमिटेशंस है हमारे पास, दैट वी कैन नॉट सॉल्व मोर देन a problem having more than two decision variables. There may be human errors and there may be the problem of sensitivity analysis as well as. So those points we have already discussed in the limitation of graphical methods. So how this particular method works, this simplex method, it works from finding a basic solution. First we find a basis solution, and from this basis solution we try to find out optimal solution. So this particular method start कहाँ से होगा? So start में we will try to find out a basic solution. पहले हम बेसिक सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एंड फ्रॉम बेसिक सोल्यूशन वी ट्राई टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो इन दैट वे this particular methods works. It also, and how it works, so it try to find out in this particular method, it helps to identify the best solution at every stage of iteration. So iteration, that means ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दैट मीन्स फ्रॉम बेसिस टू ऑप्टिमल, इट विल बी सॉल्व इन नंबर ऑफ इटरेशंस, और हर एक इटरेशन में सोल्यूशन बेटर होता जाएगा. सो वी मूव्स फ्रॉम बेसिक सोल्यूशन टू ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय इटरेटिव प्रोसेस. एक बार इटरेट करेंगे, वी विल फाइंड सम बेटर सोल्यूशन, वी विल अगेन डू सम iteration, we find again more better solution. So in that way, from basis to optimal it will work. So if suppose if we take, because we know if it is a two-dimension problem and we have a variable x1 and x2, so our feasible region will be above x and right side of x2. So in this region we have a optimal solution. हमारा solution कहाँ लाई करेगा, because x1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, as well as x2 it should be also 0 or positive. So our feasible solution will be in this region. So in this method, if we have a problem of maximization of a function, so in the maximization we start from 0. So that means our basis solution will start from 0 origin or from the origin, and
to find out the optimal solution we go up to infinity. So अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, सो इनिशियल सोल्यूशन दैट इज़ द बेसिक सोल्यूशन, it will start from origin, that means 0 0, and it will go up to infinity to find out the optimal solution. ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए 0 से स्टार्ट होगा और इस साइड को मूव करेगा. एंड इफ इट इज़ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो मिनिमाइजेशन के केस में द बेसिस सोल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, एट विल मूव टूवर्ड्स ओरिजिन एंड विल मूव टूवर्ड्स ओरिजिन टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ठीक है. तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या होगा, सो अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो बेसिस सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट करेंगे एंड वी मूव्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए वी मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी बिकॉज फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम इन्फिनिटी की साइड में जाएंगे. यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, x1 x2 0 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम्स 0. एंड इफ इट इज़ ए मिनिमाइजेशन, सो वील मूव फ्रॉम इन्फिनिटी towards origin to find out the optimal solution. So in that way this particular method works. It is a iterative process, and every iteration we have a better solution. And one more point, you will always find a identity matrix. In this method we will always find the identity matrix. जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे, सो वहाँ पे यू विल लुक, देयर इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर यूनिटी एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0. सो इस तरह से दिस इज 0 0, डायगोनल एलिमेंट विल बी यूनिटी एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0. एंड दिस order of this matrix, that means what is the order of the matrix, so order of matrix, it will be equal to the number of constraints. It will be equal to the number of constraints. प्रॉब्लम में जितने constraints है 2 3 और 4, so depending on the constraints उतने ऑर्डर का, if it is a 2 constraints are there, so the order of unity matrix will be 2 cross 2. If it is a 3 constraint problem, so order of the matrix identity matrix will be 3 cross 3. So this is the theory parts, some basic points for the linear program problem, that is the simplex method. First point, it is a efficient method, that means it is a superior method than the graphical method. Graphical method, we have a limitation on the variables, that means we can have only 2 decision variables, but here in the simplex method we can have more than 2 decision variables, or we can say or we can solve the problem of variables having any order. So this is the theory parts, but before we look a problem, there is some basic requirements for solving a problem by simplex method. So let us look what is the requirements. So there are certain requirements, so let us look the requirements for simplex method. So in the simplex algorithm we need some standard requirement to solve the problem by simplex method. So let us first requirement number 1. So requirement number 1, that means whatever the problem is given,
it must be in a canonical form. कैनोनिकल फॉर्म, प्रॉब्लम जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए. कैनोनिकल फॉर्म दैट मीन्स इट इज़ द form of equivalence. It is the form of equivalence. Because constraints कैसे होंगे, constraints होंगे inequality के फॉर्म में. सो उस inequality के फॉर्म्स को पहले हमको इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स form of the equivalence, and that is known as the canonical form, or we sometime we called as a standard form of the problem. So पहले प्रॉब्लम को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So how we will convert that? So if suppose let us case one, suppose if the inequality are in the form of less than equal to type. अगर इस टाइप की inequality है, so what will be, उस केस में हम क्या करेंगे? So let us look from example. Suppose we have a decision variable 2x1 plus x2 less than equal to 40, and one more constraints 5x1 minus 2x2 less than equal to 20. This is constraint 1, constraint 2. दोनों constraint किस टाइप के हैं? less than or equal to type. So if you look left hand side, it is always less than or it will be equal to the right hand side. Left hand side कैसा होगा? मैक्सिमम वो 40 हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज लेस देन 40. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड समथिंग टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशंस. इस लेफ्ट साइड में जो है वो वैल्यू हमेशा 40 से कम ही है. सो अगर इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू ऐड समथिंग टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट. सो लेट अस वी एडिंग a decision variable, we adding a variable s1 and it becomes equal to 40. लेफ़्ट साइड हमेशा कम है तो हमने लेफ़्ट साइड में एक वेरिएबल ऐड कर दिया s1 and it is equal to 40. Similarly for 2, this can be written as 5x1 minus 2x2 and another variable s2 and it becomes 20. And here s1 and s2, these two variables are called as a slack variables. So what does it mean? Suppose if we perfectly utilize, or this suppose your constraints are perfectly यूज्ड, इसको हम पूरा यूज़ अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स 40 अगर पूरा यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस s1 विल बी ज़ीरो. s1 विल बी ज़ीरो. कब ज़ीरो होगा? s1 विल बी ज़ीरो. कब ज़ीरो होगा? व्हेन constraints are fully consumed. अगर सारे कंस्ट्रेंट्स यूज हो जा रहे हैं, सो इस केस में s1 विल बी ज़ीरो, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. अदरवाइज एल्स इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर. सिमिलरली s2 के लिए भी ऐसे होगा. अगर कंस्ट्रेंट्स पूरा का पूरा यूज हो जा रहे हैं, सो इन दैट केस s2 विल बी ज़ीरो, अदरवाइज s2 विल बी अ पॉजिटिव नंबर. सो if constraints are less than equal to type, so left hand side में we add a variable and that variable is known as slack variable, and with this variable it is converted into the form of the equality or in the standard form. This particular equation we can write further like this: 2x1 plus x2 plus s1 plus here 0 we can write this is 0 s2 equal to 40. s2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 0, सो s2 विल बी 0.
सिमिलरली इक्वेशन 2 5x1 माइनस 2x2 प्लस यहाँ पे S2 है, S1 नहीं है, सो आई कैन राइट 0 ऑफ दी S1 प्लस S2 एंड इट इज़ इक्वल टू 40. सो यू कैन सी कि कितने कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स थे, कंस्ट्रेंट नंबर 1 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 2. सो इफ़ यू लुक दिस इक्वेशन, ये देखो ये वाला ये पोर्शन, इफ़ यू लुक, सो इन S1 and S2 वी हैव अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. S1 का कोफिशिएंट 1 है, S2 का 0, S1 का 0, S2 का 1. सो 2 कंस्ट्रेंट्स थे, सो वी हैव अ 2x2 identity matrix. So in the simplex table you will always find this particular matrix, identity matrix. जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे you will always find there will be a identity matrix and this rank of this matrix will be equal to, किसके इक्वल होगा, number of constraints. जितने प्रॉब्लम में constraints होंगे उतना ही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक होगा. सो 2 कंस्ट्रेंट्स थे 1 and 2, सो वी हैव अ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ ऑलवेज लेस देन. सो लेस देन है तो हमको इक्वालिटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करना पड़ेगा. सो वी एडेड S1 and S2. S1 and S2 आर स्लैक वेरिएबल. वैल्यू S1 and S2 की इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो. पॉजिटिव ज़ीरो कब होगी, व्हेन द कंस्ट्रेंट्स आर फुल्ली कंज्यूम्ड. अगर ये कंस्ट्रेंट्स को परफेक्टली फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, इन दैट केस S1 विल बी ज़ीरो, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. सो दिस इज द केस 1 एंड इट इज़ फॉर इनइक्वालिटी एंड इट इज़ ऑफ लेस देन और इक्वल टू टाइप. सो लेट अस टेक केस 2. अगर केस 2 में क्या हो जाता है, अगर इनइक्वालिटी it is of greater or equal to type. So अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल टू टाइप की है, सो लेट अस एक प्रॉब्लम से इक्वेशन से देखते हैं. दिस इज 4x1 प्लस 8x2 ग्रेटर और इक्वल टू 24 एंड 2x1 प्लस 10x2 greater or equal to 15. So these are the 2 constraints, constraint 1 and constraint 2, and inequality greater or equal to type की है दोनों में. So from here we can, यहाँ से क्या पता चल रहा है, it is clear that left hand side it is always greater than the right hand side. ये पोर्शन हमेशा ज़्यादा ही है राइट हैंड साइड से, या तो इक्वल होगा. इक्वालिटी तो छोड़ देते हैं, बट इनइक्वालिटी के केस में दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द राइट हैंड साइड. सो अगर इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड साइड. इस साइड से कुछ माइनस करना पड़ेगा. सो लेट अस, उसको हम अगेन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट अस राइट दिस इक्वेशन. इसको मैंने लिख दिया 4x1 प्लस 8x2 and minus S1 is equal to 24, और this equation twice x1 plus 10x2 minus S2 is equal to 15. और यहाँ पे जो S1 and S2 है, S1 and S2 वहाँ पे स्लैक वेरिएबल बोला था, इट्स यहाँ पे ये ग्रेटर है, ज़्यादा है, सो इट विल बी योर surplus variable. So this S1 and S2 we called as a surplus variables. So अभी यहाँ पे इफ़ यू अगर यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे S1 का कोफिशिएंट -1 है एंड S2 इट इज़ 0. यहाँ पे S1 0 है, S2 जो है इट इज़ -1. सो वी डू नॉट फाइंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे वी डू नॉट फाइंड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सो वी कैन नॉट स्टार्ट द प्रॉब्लम.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं हो सकता, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए वी व्हाट क्या करना पड़ेगा, सो उसके लिए वी एडेड वन मोर वेरिएबल एंड दैट इज वी रेफर्ड एज अ आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो इस इक्वेशन में हम एक और वेरिएबल ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे अगर x1 और x2 रख दिया तो s1 बिकम्स -24, तो माइनस तो वैलिड ही नहीं है। सो दूसरा की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सो वी कैन नॉट स्टार्ट द प्रॉब्लम। टू इनिशिएट द प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए वी ऐड वन मोर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो दिस इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ, आई कैन राइट दिस इज एज ए 4x1 plus 8x2 minus s1 and let we call this is a1 is equal to 24, and similarly second this will be twice x1 plus 10x2 minus s2 and plus a2 and it is equal to 15. So we have added artificial variable in constraint 1 as well as in constraint 2. So now we have identity matrix. अभी हमारे पास identity matrix है, कैसे, यहाँ पे you can write this is 4x1 plus 8x2 minus s1 plus a1 and plus 0a2 equal to 24. Similarly this one 2x1 plus 10x2 minus s2 plus 0a1 and plus a2 is equal to 15. So अभी a1 and a2 में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो वी कैन इनिशिएट द प्रॉब्लम, सो वी कैन इनिशिएट द प्रॉब्लम। सो अभी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्या रोल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ इंट्रोड्यूस इन अ प्रॉब्लम जस्ट टू इनिशिएट दी प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम को एक स्टार्ट मिल सके, स्टार्ट कर सके हम प्रॉब्लम को, उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। और कब इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे इस तरह का ग्रेटर और इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स होंगे, जहाँ पे ये s1 और s2 नेगेटिव आ रहे होंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा होगा, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिजिकली देखा जाए तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैज़ अ नो रोल, कोई रोल नहीं है इसका आंसर में, इसका आंसर में कोई रोल नहीं है। रोल केवल इतना ही है कि ये प्रॉब्लम से हमको एक स्टार्टिंग मिल जाता है। सो इन दैट वे वी कन्वर्ट or we can say artificial variable, it is not a part of solution, so it is not a part of solution, or you can say practically इसका कोई existence नहीं है, practically no existence of artificial variable, आंसर में ये आएगा भी नहीं, आंसर में आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी भी नहीं आएगा। अब s1 s2 आ सकते हैं, बट a1 एंड a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल, इट विल नेवर अपीयर इनटू द आंसर। सो इन दैट वे वी कन्वर्ट, अगर इस तरह ग्रेटर और इक्वल टू टाइप की इक्वलिटी है, सो पहले हम सरप्लस को माइनस करेंगे एंड आइडेंटिटी के लिए वी ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो दिस इज दी हाउ वी विल कन्वर्ट। ये क्या रहा, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैंने बताया कि अगर लेस देन टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, सो वी ऐड स्लैक वेरिएबल s1 and s2 and there will be a identity matrix. But if the constraints are greater or equal to type, so वहाँ पे सरप्लस वेरिएबल्स को माइनस करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे टू इनिशिएट द प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। लेट अस टेक द सेकंड रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट 2, पहली रिक्वायरमेंट थी
प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट, द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, राइट हैंड साइड ऑफ constraints should be पॉजिटिव। जो कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव है तो भी उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कोई इक्वेशन, सपोज 4x1 प्लस 8x2 ग्रेटर और इक्वल टू -24। सो राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड में क्या है, इट इज़ -24। सो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, एंड फॉर कन्वर्टिंग वी विल मल्टीप्लाई -1 से इंटायर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उस यहाँ पे माइनस किया तो -4x1 -8x2 and this equality will be reversed, so greater or equal to, now it becomes less or equal to and it becomes 24। so ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। so इस तरह से अगर राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव है, सो बाय मल्टीप्लाइंग 1 वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और जब ऐसा करेंगे इक्वालिटी विल बी रिवर्स। सो इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 4x1 -8x2 and plus, because left hand side less है, so plus s1 equal to 24। now this is equation in standard form। अभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। so this is, ये हमारा कंस्ट्रेंट और रिक्वायरमेंट 2 रही, या दूसरी रिक्वायरमेंट रही कि अगर सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड में कंस्ट्रेंट्स नेगेटिव हैं, सो कन्वर्ट इनटू मेक इट पॉजिटिव। Let us take requirement 3। So अगर constraints कभी प्रॉब्लम में अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप के हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स है। अनरेस्ट्रिक्टेड का वेरिएबल्स का मतलब है वेरिएबल कैन टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। पॉसिबिलिटी है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट डिसीजन वेरिएबल कैन टेक नेगेटिव वैल्यू। अगर वो नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वरना तो क्या है, नॉन नेगेटिविटी क्या बोलता है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बोलता है वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। बट अगर किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, पॉसिबिलिटी है, सो उसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। सो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कैन बी रिटेन इनटू डिफरेंस ऑफ टू अनदर डिसीजन वेरिएबल्स। तो उसको अगर एक प्रॉब्लम से देखते हैं, अगर इस तरह का दिया है मैक्सिमाइज z, इट इज़ 5x1 प्लस 9x2 -3x3 एंड इसको मैक्सिमाइज करना है वेयर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x3 दिस अनरेस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स x3 एक ऐसा डिसीजन वेरिएबल है जो पॉजिटिव वैल्यू तो लेगा ही, बट नेगेटिव वैल्यू भी उसकी पॉसिबिलिटी में आते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सके। सो इफ़ दिस इज़ द केस, सो व्हाट विल वी डू, वी रिप्लेस दिस x3 एज अ डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव डिसीजन वेरिएबल। सो हम क्या करेंगे, हियर वी रिप्लेस x3 को रिप्लेस करना है x4 माइनस x5 से, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। सो जहाँ पे x3 क्वेश्चन में आया हुआ है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x4 एंड x5। माइंड x4 एंड x5 बोथ आर पॉजिटिव, x4 and x4
x4 एंड x5 दोनों पॉजिटिव है, सो x3 इट इज़ रिप्लेस्ड बाय टू पॉजिटिव वेरिएबल्स, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स से रिप्लेस करेंगे. x4 एंड x5 बोथ आर पॉजिटिव, सो आई कैन राइट maximize z and it is 5x1 plus 9x2 and minus 3 in the place of x3. Now I will write x4 minus x5, so it becomes 5x1 plus 9x2 minus 3x4 plus 3x5. So this will be your objective function. And if x3 is present into the constraints, अगर if x3 is present in constraints तो वहाँ पे भी we have to replace x3 by x4 minus x5, तो वहाँ पे भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा. सो जहाँ पे भी x3 होगा, replace all those x3 by difference of two different positive decision variables. So this is the requirement number 3. So these are the three basic requirements before we solve a problem in a simplex method. So number 1 requirement, write problem in standard form. पहला है, पहले standard form में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे वो बताया कि लेस देन टाइप है, सो वी विल ऐड स्लैक वेरिएबल. इफ इट इज़ अ ग्रेटर और इक्वल टू टाइप है, सो वी विल ऐड सब्सट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, बट सरप्लस से प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, सो फॉर दैट वी विल इंट्रोड्यूस अ आर्टिफिशियल वेरिएबल. सो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस टू इनिशिएट द प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. इसका कोई वैल्यू मीनिंग नहीं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और आंसर में आएगा भी नहीं. सो इन दैट वे हियर इट इज़ रिटन एंड यू कैन सी हियर a1 एंड a2 वी हैव अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि दो डिसीजन वेरिएबल्स है, दो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. रिक्वायरमेंट नंबर 2, राइट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अगर नहीं है so multiply by entire equation by -1, and remember जब हम करेंगे तो equality will be reverse. 9 is greater than 4, it is always true, but अगर multiply करूँ -9 is greater than -4, 9 तो 4 से बड़ा है, it's always true. अगर मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -9 और -4, तो क्या -9 -4 से बड़ा है? नहीं, ये रॉन्ग है. -4 इज़ ग्रेटर देन, सो दिस इक्वालिटी विल बी रिवर्स. सो -9 इट इज़ लेस देन -4. तो इस तरह से इक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो अगर यहाँ पे लेस देन होता तो ग्रेटर देन है, सो इट बिकम्स लेस देन. एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, इफ वेरिएबल्स आर अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप. Unrestricted type means possibility है variable can take negative value. So in that case, this x3 that is unrestricted variable, it is replaced by difference of two positive variables. x4 and x5 are positive. तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में ये वेरिएबल है x3, replace all those x3 with x4 minus x5. अगर कंस्ट्रेंट में प्रेजेंट है, so always कंस्टेंट में भी नहीं, उसको भूलना नहीं है, कंस्टेंट में भी वी हैव टू रिप्लेस दिस x3. सो इन दैट वे बिफोर वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव टू चेक दीज पॉइंट्स. थैंक यू.